why there is need of calculus, what we do in calculus. Let us study. Calculus deals with functions only. ठीक है? Operations with functions. Now, what is the meaning of function? You just observe. In 10th class, you have studied equations of two variables, and you had taken two variables as x and y. Let me write an equation: y is equal to x minus 3. कोई भी एक इक्वेशन लिख दिया. जरा बताओ तो ऐसे कितने इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? y और x में ऐसे कितने इक्वेशंस लिख सकते हैं हम? Infinite relations लिख सकते हैं. Is that clear? Now, probably you know that y and x are variables in which x is called independent variable and y is called dependent. Now, बोलते जाना. If I put x is equal to 1, what is the value of y? Minus 2. Okay. If I put x is equal to 2, minus 1. If I put x is equal to 3, ठीक. Now what is the importance of this? Putting the values of the variables is when you are changing the value of x, correspondingly value of y is also changing. This is the meaning of function, that if a variable depends upon another variable, then first variable is called function of second variable, and y here is a dependent variable. y को हम लिखते हैं, देख लो, y is called, words में कैसे पढ़ेंगे? f stands for function, so you read it as y is a function of x. Clear? And ऐसे आपने बोला infinite relations हम लिख सकते हैं between two variables. And in every relation, when one variable changes, correspondingly the other variable will also change. Clear? Then mathematically, what is the change represented as? देखो, ये लिखना. ये तो एक रिलेशन आपको बताया. अब ये वर्ड देखो, अगर नोट करना है तो मेरे साथ लिखना. एक भी मिनट का टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. आप 11th में हो. एलिमेंट्री चेंज इन एक्स. एलिमेंट्री वर्ड जहां पे आएगा उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, छोटा चेंज. ठीक है? छोटा एलिमेंट्री. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट एम आई राइटिंग. पढ़ो क्या लिखा? dx. किसी भी वेरिएबल के सामने d लगा दिया आपने, देन इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्री चेंज. तो आपने तो ऊपर देखा, इफ x चेंजेस, correspondingly y also change. Clear? So if elementary change in x is represented as dx, how do I write elementary change in y? dy. Definitely छोटा चेंज x में होगा तो छोटा चेंज y में भी होगा. Clear? Then can you write how do I write rate of change of y with respect to x? इसको कैसे लिखेंगे? Rate of change of y with respect to x, इसको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल बता रहा हूं. Velocity in physics is defined as rate of change of displacement with respect to time. और लिखते कैसे हैं? v is equal to s by t लिखते हो आप. ठीक?
वही काम तो यहाँ बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, y नहीं, क्या लिया, एलिमेंट्री है, dy by dx, ये स्टार्ट हो गया, क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये देखो ये फर्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y, जो न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। So whenever you get this quantity dy by dx typed quantities means we are going to differentiate that quantity, clear. So this is started your calculus. The first part of calculus is called differentiation. Differentiation is denoted by dy by dx. Actually इसको dy by dx हम काम चलाऊ लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं. It is actually read as, क्या लिखा, d by dx of y, that is differentiation जो coefficient है, it is not dy by dx, it is d by dx is the coefficient, और किसका कर रहे हो आप, y का. So actual pronunciation is d by dx of y. अब इतना कौन बोलेगा, dy by dx हम बोल के काम चला लेते हैं. Is that clear? अब y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ dy by dx, ये मैं लिखने जा रहा हूं. फॉर्मूला कहां से आया कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ याद रखना है. सो सी, कम से कम 9 फॉर्मूलेज में लिखूंगा यहाँ पे. वो 9 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो पूरा फिजिक्स खत्म, मतलब पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आपको उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है. एंड with examples. So if you want to write, write with me. We are going to see. Formulae of differentiation. And what have we studied about differentiation is this, that we are going to calculate d by dx of y, ठीक. and आपने बोला y is a function of x, तो y की different values के लिए d by dx of y क्या आएगा ये हम लिखेंगे, ठीक. और सबसे पहला फॉर्मूला जो लिखूंगा वही सबसे ज्यादा यूज होगा, बाकी के फॉर्मूले बहुत रेयरली यूज होंगे. The first formula is, देखो, it is d by dx of, क्या लिखा, x to the power n, मतलब y की वैल्यू x to the power n है. x is a variable, n stands for number, n stands for number. अब एग्जाम्पल बताऊंगा. then the value is, the value of d by dx of xn is n x to the power n plus, sorry, पहली बार जिंदगी में गलती लिखा, n x to the power n minus 1. This is the formula. अभी देखो, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए तुमको नया लगेगा. एग्जाम्पल फटाफट बोलना, लिखना नहीं है इसको, सिर्फ बोलना है. If you get d by dx of x to the power 6, what is your answer? n को भर देखो, n is 6, बोलो क्या आएगा, 6 x to the power. If you are getting d by dx of x to the power 9, तो सीख गए. अच्छा, अगर आपके पास आया d by dx of x to the power -3, एक साथ बोलो, -3 x to the power -4. अच्छा, आपके पास आया d by dx of x to the power 3/2, 3/2 x to the power 3/2 minus 1 is 1/2. The meaning is n can be positive, n can be negative,
n can be fractional as well. n can be any number, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल. ठीक. अच्छा जरा ये बोलो तो, गड़बड़ी देख लो. अब मैंने यहां सब एक्स एक्स लिखा है, यहां क्या गया? मीनिंग इज डिफरेंशिएशन कैन बी परफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल. एक्स हम सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने के लिए कर रहे हैं. आपने इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा 10th क्लास में, वाई और एक्स में पढ़ा, लेकिन अगर ए और बी में दिया रहेगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? इट इज द मेथड हाउ टू सॉल्व इक्वेशन. सो डी बाई डी एक्स इज अ मेथड, बट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल. फॉर्मूला वही लगेगा. देखो नीचे भी टी है, ऊपर भी टी है. वी कैन डिफरेंशिएट. बोलो क्या आएगा? 2t. 1 मतलब t. इज दैट क्लियर? अगर आपके पास आता d बाई डी पी ऑफ p टू द पावर -5/2, -5/2, p टू द पावर -7/2. इज दैट क्लियर? सो ये फॉर्मूला है, ये इसका मीनिंग है. हाँ, अब इसके स्पेशल केसेस ये लिखना है. लिख फिर. मत लिखो इसको, क्या लिखोगे? ये तो बहुत इजी है ना. चलो अब जो लिख रहा हूं उसको देख लो. स्पेशल केसेस यहीं पे इसी फॉर्मूले के सबसे ज्यादा यही यूज होगा फिजिक्स में. कैलकुलस मतलब यही फॉर्मूला है, n(x to the power n-1). नाउ स्पेशल्स. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? इट इज डेफिनेटली 1. फॉर्मूले में भी रखोगे तो x की वैल्यू, x की पावर 1 है, दैट इज वैल्यू ऑफ n इज 1. इसमें रखो जरा 1 x की पावर 0. व्हाट इज x की पावर 0? तो 1 ही बचेगा. इट मीन्स दैट आपके पास dx बाई dx आया, इट इज 1. अगर आपके पास कहीं पे d थीटा बाई d थीटा आ जाएगा 1. अगर आपके पास dp बाई dp आ जाएगा, that is if numerator and denominator are same, then differentiation is 1. Clear? d by dx of 4. 4 is a constant. ठीक है? 4 is a constant. याद करो, d by dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर कांस्टेंट आ गया. अभी तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, 4 रिमेन्स 4. इसका मतलब डिफरेंशिएशन इज 0. द कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट अकेले आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0. दैट इज अगर ड्यूरिंग सॉल्यूशन d by dt, जनरली t विल गोइंग टू डिनोट टाइम इन फिजिक्स. d by dt ऑफ पाई कहीं पे आ गया, पाई स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट 22/7, देन इट्स वैल्यू इज 0. सो कांस्टेंट अगर अकेला आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. मगर ये देख लो, d बाई डी एक्स ऑफ 4 और साथ में x³ आ गया. ठीक है? तो कॉन्सेप्ट इज 4 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, छोड़ देंगे उसको. जस्ट लीव द कांस्टेंट. 4 छूट गया, फंक्शन क्या बचा? x टू द पावर 3 फॉर्मूले में आ गया. बोलो x³ का डिफरेंशिएशन बोलो 3x², सो दैट इट इज 12x². ठीक है? अगर आपके पास आता d बाई डी टी ऑफ 12t, वैल्यू बोलो. ट्वेल्व इज अ कांस्टेंट, छूट गया. अबे तो फिर उसके बाद आया dt बाई डी टी. अब भी लिखा ऊपर में dt बाई डी टी इज 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 12. ठीक है? सो कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है
then in differentiation just leave the constant and differentiate only the function. ठीक है, अब ये याद रखना, ये स्पेशल्स है इन डिफरेंशिएशन फॉर फर्स्ट फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. नॉट अलाउड मेरे साथ लिखो, पहले ही बोला है, पहले दिन से आदत गंदी पड़ेगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सेकेंड फॉर्मूला देखो, d by dx of e to the power x. Do you know what is e? E stands for exponential. ठीक है, e is a number only. It is generally used as the base of logarithm, and exponentially its value is, ये देखो, it is greater than 2 but it is less than 3. Its value lies somewhere between 2 and 3. ठीक है, ये e दिखेगा आपको फिजिक्स में कहीं कहीं पे. It is the base of logarithm generally. Then differentiation of ex, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, नालायक फंक्शन है तुम लोग के समान. d by dx of ex remains ex. Then the third formula, d by dx of, पढ़ो क्या लिखा, log x, logarithm वाला log, and its formula is 1 by x. तो तीन बेसिक फॉर्मूले बताए आपको, एक्स एन का डिफरेंशिएशन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ई एक्स का ई एक्स नालायक है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय. ठीक है, हो गया. अब कल ही आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक. उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देख लो, लिखो स्पेशली. ट्रिग्नोमेट्रिक formulae, or to write trigonometric formula just divide to form a table. एक टेबल फॉर्म बनाएंगे. The meaning of this is when we write formula towards left side the result is positive and towards right side the result is negative. ठीक है, अच्छे से देख लो, बिल्कुल इजी है. सबसे ज्यादा यूज पहला ही फॉर्मूला होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे ज्यादा साइन, कॉस और टेन का ही फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादातर बाकी यूज नहीं होने वाला है, फिर भी हम देखेंगे. अब देखो, 3 फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला नंबर 4, d by dx ऑफ, क्या लिखा देखो, साइन x. तो बिग कट इजी है भाई, इट इज प्लस cos x. Differentiation of sin is plus cos. तो क्या इस तरफ का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जैसा इधर लिखाया ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला राइट साइड में होगा. दैट इज इफ आई वांट टू आस्क यू d by dx ऑफ cos x, तो पहले माइनस, क्योंकि राइट साइड में है, माइनस और sin x. So differentiation of cos is minus sin, differentiation of sin is plus cos. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े. फॉर्मूला नंबर 7, अच्छा 6, चलो बड़ा मेरा गलती देख रहा हूं. d by dx ऑफ tan x प्लस cot x, बिल्कुल नहीं होता, इट इज प्लस sec square x. So differentiation of tan x is plus sec square x. ठीक है, तो बोलो अब फॉर्मूला नंबर 7, tan के बाद cot आता है, मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है. कैन यू आंसर d by dx ऑफ cot x. tan में sec आया तो cot में क्या आना चाहिए,
क्या लिखेंगे, पहले माइनस और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 8, साइन कॉस टेन कॉट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तेरे भाई की कॉपी में गलत लिखा है, सुधार लेना। So d by dx of sec x is not 10x, it is sec x into 10x। ठीक, तो बोलो क्या राइट साइड का फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या आप? फॉर्मूला नंबर 9, d by dx of cosec x, बोलो माइनस, हाँ क्योंकि sec में sec और tan आया तो cosec में इन माइनस cosec x cot x हो गया, खत्म। इस 9 फॉर्मूले के अलावा और कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में नहीं है आपके पास। कहां से आया उससे कोई मतलब नहीं है। 12th में मैथ्स जो लेके पढ़ रहा है वो वहां मरे, हमको कोई मतलब नहीं है। आप लोग वहां प्रूफ करेंगे कहां से आया ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने उठा के कॉस एक्स लिख दिया है। क्यों भाई? मेरा बोर्ड है, मैं कुछ भी लिखूंगा। वो मैथ्स में जाके आप देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमको सिर्फ वैल्यू मालूम होना चाहिए जो कि हमने लिख लिया। इज दैट क्लियर? ठीक, होमवर्क यहीं पे लिखो। राइट ऑल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन कम है, बहुत कम है। चल ठीक है, ये ले सामने 1 लिख दिया। $300 कम है तो बहुत कम है बोली है। तू तो 1300 बार लिख के लाएगी। अब तू लिखते जा, पूरे खानदान मिलके लिखोगे तो भी 1300 बार नहीं लिखा पाएगा वो। बाकी लोग 3 टाइम्स लिख के लाओगे, सिर्फ ये बहन जी जो है वो 1300 टाइम्स लिख के लाई। थ्री टाइम्स ईच। और याद रखना अभी देखो इतने देर तक, अभी हम उसका एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ कुछ ही भूलेंगे। अगर ईमानदारी से आज ही जाके 3 बार बिना देखे आपने फॉर्मूला लिखा तो याद रखना पूरे 12 तक इसमें कोई चेंज नहीं हो। अमेरिका भी चले जाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही हो। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस क्या है, ठीक, इसको जरूर नोट करें। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्पेशल्स, अभी कांस्टेंट का इंटरप्रिटेशन आपको बताया था। इफ कांस्टेंट कम्स विथ अ फंक्शन we just leave the constant। जरा बोलो तो, what you write d by dx of d by dx of 4 sin x। 4 अकेला आएगा तो 0 बेटा, 4 के साथ sin x है। आप 4 को छोड़ दो तो बचा sin x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? तो इसका मतलब प्लस 4 cos x इज योर आंसर। ठीक, मगर d बाई डी एक्स ऑफ साइन और एंगल में 4x आ गया, दोनों में डिफरेंस है, देख लो आप। ठीक, यहां एंगल x है, 4 पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ, यहां एंगल में ही 4x है, मतलब 4x से मल्टीप्लाई हुआ है। देन द प्रोसीजर इज जस्ट लीव दिस 4। ठीक, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? प्लस कॉस, ये हमेशा साइन के साथ बोला करो,
एंगल चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स cos 4x। एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये कांस्टेंट जो है वो कहाँ आ जाएगा, सामने। सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x इज 4 cos 4x। अभी 2-3 पूछूंगा, बोलोगे तो फ्रीक्वेंटली आएगा। बोलो, अगर आपको बोलता d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, पहले माइनस 2 sin 2x, कांस्टेंट सामने आएगा, एंगल में भी रहेगा। चलो बोलो, व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस, d बाई डी थीटा tan 3 थीटा। क्या सेक्टर 3 बोल रही है? सेक्टर 3 में रहती है। गुड, देख लो tan 3 थीटा है, 3 इज अ कांस्टेंट, 3 को पहले सामने लिखो। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो sec स्क्वायर x है, सो इट इज 3 sec स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, चलो अभी भी हेजिटेशन है, बोलते जाओ। अब जिसको मालूम होगा कृपया हाथ उठाए। d बाई डी टी ऑफ 4 sin 3x, who can answer? जो आंसर कर सकता है हाथ उठाए, बोल भाई 1300 बार। नालायक क्या, यहीं पे देख, ये तो दिख रहा है। हाँ बोल। 12 अच्छा, एक मिनट, सॉरी, आई एम राइट, आई एम करेक्टिंग इट, 4 sin 3t। क्योंकि देखो अब यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है ना, तो पहला कांस्टेंट पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, पहले 4 को छोड़ दिया, ठीक। अब आया sin 3t, तो उसके एंगल में भी 3 है, तो 3 भी सामने आएगा, हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos और एंगल 3t, एंड 4 3 जा 12 cos 3t। एक और बोलो, फिर अपन आगे चलते हैं। कैन यू d बाई डी टी ऑफ 2 sec 5t। कांस्टेंट है, पहले छोड़ दो, बचा sec। sec का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, देखो sec इंटू 10, तो और एंगल में 5 है, तो 5 बाहर आ गया, और फिर sec 5t इंटू 10 5t, एंड 5 2 जा 10 sec 5t इंटू 10 5t। ठीक है, दिस इज द स्पेशलिटी इन डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये अगर याद है तो याद रखना, पूरी फिजिक्स में कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इज दैट क्लियर? चलो, अब आपने ये जो 9 फॉर्मूले लिखे, अब आपकी कॉपी में लिखे हैं, अभी आंसर करने के लिए यू कैन सी द फॉर्मूला। ठीक है, कल नहीं, कल तो मैं देखने नहीं दूंगा कॉपी, पूरे 9 फॉर्मूले 1300 बार लिखने वाली हो। अब तू फंसी, मैं नहीं जानता। तो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी तक आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन एक साथ आ गए और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा, देन व्हाट आर द प्रोसीजर? सो लेट अस राइट laws of addition and
subtraction. Laws of addition and subtraction for differentiation. हाँ, the meaning is, देखो बिल्कुल सिंपल, अगर आपके पास आया d by dx ऑफ, पहला फंक्शन आया f1, कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस दूसरा फंक्शन f2, प्लस और माइनस तीसरा फंक्शन f3 एंड so on. Then the procedure is very simple. Just differentiate each and every function separately. That is, the first term is d by dx of f1, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो साइन होगा वो लगाएंगे. सेकेंड टर्म बोलो, d by dx of f2. थर्ड टर्म बोलो, प्लस और माइनस d by dx of f3 and so on. ठीक है? To support this, let us understand it with the example. Can you evaluate this d by dx of, बिल्कुल सिंपल फंक्शन दे रहा हूं, x क्यूब माइनस लॉग x plus 10x. Can you answer what is the result of this differentiation? देख लो, तीन टर्म्स हैं आपके पास. फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, ठीक है? आपको तीनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है. देख, फर्स्ट टाइम है इसलिए लिख रहा हूं, इसके बाद सीधा लिखेंगे. फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगाया. सेकेंड टर्म बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. थर्ड टर्म बोलो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10x. ये हो गया. अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है? चलो बोलो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एन एक्स एन माइनस 1, माइनस है तो माइनस, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन, सो इट इज sec स्क्वायर x. उसको टच कर, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? एक 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 क्या समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है. यू सी, ये नई चीज है, टेढ़ा है पर मेरा है. बेटा अभी तूने इक्वेशन लिखी थी डी, ये बता, रुक जा, उसी को बोलने देना, आप कोई नहीं बोलेगा बीच में. क्या लिखा था? x टू दी पावर n, पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने. क्या लिखा था बोलो? अबे कलमा मत बोल, ये इसका वैल्यू बोल. नालायक कह के, n x n माइनस 1, ये भी पढ़े थे. तो फिर वही है बेटा, x क्यूब, n की वैल्यू 3 है, तो फिर डिफरेंशिएट किया ना, फिर सारे फॉर्मूले लिखे. अभी मैंने 9 फॉर्मूले तेरे सामने लिखे, अब तू भी 1300 बार लिख के ला, तब समझ में आएगा क्या कर रहा है. आ गया ना? अगला तेरे को ही बोलना है. चल एग्जाम्पल, अभी तो मैं मैथ्स बता रहा हूं, अभी इसके बाद फिजिक्स लाऊंगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस.
जबरदस्ती इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? What is the need of studying differentiation? Just I am going to write this. पहले आप और अच्छे से frequently सबका आंसर एक साथ आ जाए तो अब मैं फिजिक्स बताऊं आपको यहाँ. एग्जाम्पल नंबर 2. Evaluate. अब d by dt of 4t square minus 3 cos 2t plus 4 e to the power t. Can you answer this? हो गया? गुड. मगर बोलना तो इसी को है. तेरे को तो बन गया बेटा, फट से सीख गई. अब तो डोकरी हो गई मेरी क्लास में. उसका पहला दिन है, अभी तक हेजिटेटेड है. देख, चल बोल. गुड. बन गया भाई तेरा? हाँ, नहीं बना. देखो, नहीं बना. चल ठीक है, बोलते जा. अभी क्या सिखाया कि जब डिफरेंशिएशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स आएंगी तो हमको सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है. तो लिख, फर्स्ट टर्म तेरी क्या है? देख, d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वेयर. तो मेरे को तो होने दे. फिर d बाई डी टी ऑफ 3 cos 2t. फिर थर्ड टर्म बोल. प्लस कौन बोलेगा? हाँ, गुड. ये बोल दिया आपने. अब फॉर्मूले में आ गया बेटा सब. फर्स्ट टर्म 4 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट को क्या करते हैं? छोड़ दे. नेग्लेक्ट नहीं करते. तेरे को नेग्लेक्ट करेंगे, नालायक कहेंगे. छोड़ते हैं. 4 को छोड़ दिया, बचा टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल. ये देख, अब तो n कहाँ गया? सामने n भी आ रहा है. नालायक कह के 4 छोड़ दिया. t का स्क्वायर है. n की वैल्यू कितनी है यहाँ पहचानो. तो 2 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? तो फिर ऐसे बोलना, इतने देर में 2t. तो ये 2t. ठीक है. फिर ये माइनस है तो माइनस. अब ये 3 cos 2t है. फिर तो टूटेगी. देख, ये 3 इज अ कांस्टेंट, छूट गया. ठीक है. अब आया cos. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, मगर एंगल में 2t है. ठीक, तो इसलिए क्या सामने आएगा? ब्रैकेट लगाया, -2. और cos का डिफरेंशिएशन साइन, फिर 2t, फिर प्लस है तो प्लस. 4 इज अ कांस्टेंट, छूट गया. et का डिफरेंशिएशन et ही रहेगा, नालायक फंक्शन है. और इसलिए देख भाई, अब ठीक है? कहीं कोई डाउट? तो 4 2 8t
माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 साइन 2t और प्लस 4 e टू द पावर। इज दैट क्लियर? ये है। तो करना क्या है, जो 9 फॉर्मूले, इसलिए अभी फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं लोग क्योंकि अभी फॉर्मूला दिमाग में घुसा नहीं। जब 1300 बार लिखोगे तो सारे फॉर्मूले से फूट फूट के फेंकाएंगे। रास्ते भर चलते हुए बोलो। आइंस्टीन जब रास्ते में चलते थे तो लोग पागल बोलते थे, एंड टुडे इज प्रूव्ड कौन पागल था। सोच लो। सो प्रिपेयर योरसेल्व्स। आपको सब्जेक्ट सीखना, पर रास्ते में फॉर्मूला याद करते हुए चलो। लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, हंस देना। मगर हमको अपना सब्जेक्ट बनाना है तो हम ही बना सकते हैं, दूसरा कोई बनाने वाला नहीं। इज दैट क्लियर? चलो अब फिजिक्स देखो। अभी आपने बोला वेलोसिटी इज डिफाइंड एज rate of change of displacement with respect to time. Now the question of physics, why we are studying differentiation? लिखो, the displacement of a particle depends upon time as follows. याद करो, डिस्प्लेसमेंट को हमने s से डिनोट किया था, ठीक है। सी s इट इज गिवन एज 4t to the power 4 minus 2t plus 10, ठीक है। और क्वेश्चन बोला ऑब्टेन इट्स वेलोसिटी एट t is equal to 1 second. Now this is physics. जिसको डिफरेंशिएशन आएगा वही ये क्वेश्चन को बना पाएगा, क्योंकि फिजिक्स कहां पे इंक्लूड होगी ये आप देखें। द सॉल्यूशन टू दिस इज, सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करो। फिर से बोलो, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखा था dy by dx. Then how do I write velocity? Rate of change of displacement with respect to time, मतलब displacement का डिफरेंशिएशन करना है। s की वैल्यू आपको t की टर्म्स में गिवन है, पुटो d by dt, s की वैल्यू बोलो 4t to the power 4 minus 2t plus 10। और अब भी सीख क्या रहे हो, 3 टर्म्स है, तीनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। आई एम डिफरेंशिएटिंग, देख लो फर्स्ट टर्म 4t to the power 4 है, 4 इज अ कांस्टेंट, छूट गया, बचा t to the power 4। t to the power 4 का डिफरेंशिएशन बोलो 4t to the power 3, फिर माइनस है तो माइनस, सेकेंड टर्म है 2t, 2 इज अ कांस्टेंट, छूट गया, t का डिफरेंशिएशन 1, dt by dt 1, और प्लस तीसरी टर्म है 10, 10 अकेला आ गया, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट इज योर रिजल्ट हियर, 4 4 जा 16 t to the power 3 minus 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, किस टाइम पे निकालने बोला है, t is equal to 1। now put t is equal to 1, so you get velocity at t is equal to 1 second। so velocity देखो लिख दे रहा हूं, at t is equal to 1, बोलो 16 1 to the power 3 minus 2, what is 1 to the power 3, तो 16 minus 2 is 14, और यूनिट यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड। और याद रखो फिजिक्स में ऐसी कई क्वांटिटीज हैं that are obtained by this formula, that rate of change of one with respect to another
गिव्स यू थर्ड क्वांटिटी। ठीक, ये समझ में आ गया क्या करना है। अब देखो यहाँ पे इतने से टॉपिक को पढ़ने पे ऑल इंडिया लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही, द displacement of a particle, फिर लिख रहा हूं अच्छे से देख लो, S is equal to t square minus 60 plus 10 मीटर। ठीक है, now the question is calculate its displacement when velocity becomes 0. Can you solve? कुछ भी आ सकता है, तेरा क्या आंसर है बता। लग रहा है फिजिक्स में लग रहा है, नहीं चलेगा। चलो देखो, अब ये बोला ना मैंने, ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चन है। कई लोग नहीं बना पाते हैं। अब देखो, सॉरी, एग्जाम्पल सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको वेलोसिटी वर्ड यहाँ यूज हुआ है, देन वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। क्या डिफाइन किया था वेलोसिटी, बोलो। वेलोसिटी इज ds बाई dt, डिफाइन किया था। चलो रखो, इट इज d बाई dt ऑफ s की वैल्यू रखो t स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 10। अब डिफरेंशिएट करो, रुक जा, चल कर। डिफरेंशिएशन कर बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल, 2t, वेरी गुड। हाँ फिर माइनस 6 इंटू, नालायक कहीं के 1, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। हाँ फिर प्लस 0, 10 अकेला है। ठीक, सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2t माइनस 6। मगर क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, जरा इस लाइन को देखो, velocity becomes 0, then put this value equals to 0. So if I solve this, can I write 2t equals to 6? So can I write t is equal to 3 or seconds? शाबाश, नालायक कहीं के, ये t आया है। पूछा क्या है तेरे से यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंड अब s की वैल्यू में t की वैल्यू 3 रखो। सो मत, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3,
सो s विल बी रिटर्न एज क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और प्लस 10। चलो बोलो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 3 जा 18 और प्लस 10। सो वो तो आपको ही बता देगा 10 प्लस 9 19 माइनस 18 दैट इज 1 मीटर। दिस इज द लेवल। ये तो एक सिर्फ इतना सा नाखून से भी छोटा ये बताया है। ऐसा कई काम मैकेनिक्स में अभी करना है, कई काम मैकेनिक्स में अभी करना है। हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखेंगे कैसे? एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, ठीक, and a is defined as dv by dt। ठीक है। अब देखो अगर हमको a को s की टर्म्स में लिखना है तो आप देखो dv by dt a लिखा, कैन आई राइट d by dt और v को आप ऑलरेडी क्या लिखते हो ds by dt। देन हाउ डू वी राइट दिस? ये देख लो, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज d स्क्वेयर s अपॉन dt का स्क्वेयर। इट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मेथड वही है लेकिन लिखने का तरीका ये है d स्क्वेयर s बाई dt स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? ये देख लो ये है और ऐसा, ये तो मैंने पहले टॉपिक का बताया। फिजिक्स में देयर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो ऐसे रिलेट हो सकती हैं, तो करना कुछ नहीं है, सिंपली डिफरेंशिएशन करो। फॉर्मूले पूरे 9 अगर आपको याद है देन यू कैन इजीली राइट दी वैल्यूज। ठीक, चलो फिर देखो differentiation of function of function। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इसका क्या मीनिंग है ये अच्छे से देख लो। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। ध्यान से देखो, अगर आपके पास आया, ध्यान से देखना, अभी आपने पढ़ा dy by dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जरा देखो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना, पहले dy by dx into dt by dt, t is some another variable, dt by dt लिखा मतलब ये तो 1 ही है। 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, मगर अगर इसको रीअरेंज कर दिया, इस dt को y के नीचे लिखा, तो इनटू में क्या आएगा बोलो? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी dt by dx। दिस इज स्प्लिटिंग। y को पहले t के रिस्पेक्ट में किया, फिर t को x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका ये आप समझ लो। ये चीजें भी आती हैं आगे, कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया डिफरेंशिएट, ध्यान से लिखो, d by dx of t to the power 4, तो याद रखना मुंह उठा के 4t to the power 3 मत लिख देना, क्योंकि ऊपर t है और नीचे x है। You can differentiate only if numerator and denominator have same variables। ठीक, तो इसलिए हमको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, ये d by dx है, कैन आई राइट इट एज dt to the power 4 by dt, dt से डिवाइड किया तो क्या नेक्स्ट स्टेप में dt by dx लिखूंगा? वही काम किया है, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, और ऐसा करने पर
फर्स्ट टर्म देखो डिफरेंशिएट हो जाएगी, अब ऊपर भी टी नीचे भी टी। बोल अफशा, क्या नाम है तेरा? हाँ तो रोशनी बिखेर फिर। टी टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन बोल। तो ये आ गया 4 टी टू द पावर 3, मगर साथ में क्या आया? डी टी बाई डी एक्स आएगा ही। क्लियर? So differentiation of d by dx of t to the power 4 is not only 4t to the power 3, साथ में क्या आया? dt by dx। Similarly दूसरा बना के दिखाओ जरा, d by dz of y to the power 4 अगर कहीं पे आया तो t कहाँ है भी यहाँ पे? तो देख लो, आप पहले स्प्लिट करो। देखो ऊपर y है नीचे z है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, तो स्प्लिट करेंगे। हाउ वी स्प्लिट? dy टू द पावर 4 अपॉन dy से डिवाइड किया, देन इट इज dy बाई dz। अब ये फॉर्मूला बन गया। चल रोशनी बोल। गुड, सो इट इज 4y टू द पावर 3, लेकिन साथ में क्या आया? dy बाय dz। ठीक है, चलो फिर बोलो। d बाई डी थीटा ऑफ x टू द पावर 2। अब डायरेक्ट बोलो, बिना स्प्लिट किए। व्हाट इज योर आंसर? नालायक कहीं के सब उल्टा बोल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साथ में dx बाय डी थीटा। दिस इज द कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। याद रखना, ठीक है? चलो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको याद रखना, नोट कर लो। मैक्सिमा, एक मिनट रुको, मैक्सिमा मिनिमा लिख लो। अभी ये जो फॉर्मूला लिखा ना आपने, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखता हूं। देखो मेंसुरेशन का न्यूमेरिकल। सी मैक्सिमा मिनिमा क्या है अभी बाद में लिखेंगे, पहले ये जो अभी आपने सीखा उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, लिखो। दी radius of a sphere is increasing, इसका क्या मतलब होता है? at the rate 1 centimeter per second। obtain volume of the sphere when its radius is 2 centimeter। ठीक है, तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है। जस्ट सी, क्या निकालने बोला आपको? क्या वॉल्यूम की वैल्यू हमको मालूम है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको निकालना है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो रेट हो रहा है मतलब आपको निकालना है dv बाई dt, ये निकालना है। तो राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई, बोलो, r to the power 3। now see 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, चलो छोड़ दो, 4/3 पाई छूट गया, बचा क्या आपके पास? d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। देख लो ऊपर और नीचे अलग अलग वेरिएबल है। हाँ तो फिर इसकी वैल्यू बोलो, 4/3 पाई d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, वैल्यू बोलो
3r² और इंटू dr/dt। और क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपको क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ 2 रखेंगे। क्या dr/dt भी दिया है? ये देखो यूनिट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt, इसकी वैल्यू गिवन है 1। पुट कर दो। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम? बोलो। dv/dt इज कितना बचा? 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1। सो व्हाट इज इट? 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 पाई। यूनिट देख लो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मीनिंग है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। एक और क्वेश्चन बनाओ। The radius of a cylinder of height 5 centimeter is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. Calculate rate of increase of its volume when its radius is 1 centimeter. Can you solve? चलो देखो टाइम निकालोगे तो। See, first you have to write volume of a cylinder. Do you know what is volume of a cylinder? Pi r square h। देखो हाइट यहाँ कांस्टेंट है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv/dt। हाँ तो चलो करो फिर। d/dt ऑफ पाई r square h। हियर पाई इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, h इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, क्या बचा? d/dt ऑफ r square। देख लो फिर से वही चीज आ गई, ऊपर r नीचे t। हाँ क्या करोगे डिफरेंशिएशन? बोलो। पाई h, हाँ हाँ 2r और साथ में dr/dt। क्या सारी वैल्यूज आपको गिवन है? यहीं से रखो। देखो हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, ये 5 रखा। r कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर, 1 रखा। dr/dt कितना गिवन है? 0.5 हो गया। सो
what is our answer here? That dv by dt comes out to be equal to, yes, it is pi into 5 into 2 into 1 into 0.5. 5 2s are 10. 10 into 0.5 is 5 pi, and the unit is again centimeter cube per second. This is the meaning what you have studied, function of a function. ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल होगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, और अगर नहीं हुआ तो स्प्लिट होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, अब जो लिखा था मैंने मैक्सिमा और मिनिमा, सिंपली लिख लो. कभी जरूरत पड़ सकती है, हायर फिजिक्स हमको पढ़ना ही है क्लासरूम में, और तब उस समय आपको नहीं मालूम होगा तो फिर, हालांकि है कोई डिफिकल्ट नहीं, उस समय भी बताया जा सकता है, फिर भी लिख लो. मैक्सिमा और मिनिमा. यू सी, व्हेन अ फंक्शन वेरीज, तो किसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो सकता है, कभी वो मिनिमम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. द कॉन्सेप्ट इज, लिख लो, इफ अ फिजिकल quantity P is maximum or minimum, कुछ भी हो, with respect to x, कोई वेरिएबल है, then simply what you have to do is d by dx of P, take it equals to 0. Whenever maxima or minima word, highest, lowest, maximum, minimum, largest, smallest, ये वर्डिंग किसी क्वांटिटी के साथ आई तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके क्या कर दो, 0. यू विल गेट योर आंसर, वॉट एवर बी दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन. सिर्फ 9 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और वो याद हो जाएंगे. आज 1300 बार लिखोगे आप लोग, फिर म्यूजिक आ जाएगा, आपकी क्लास ओवर हो जाएगी. हाँ हाँ, खुद मोटे. अरे क्लास में हूँ, नालायक कहीं के. पठानों तुम्हारे बड़ा परेशानी, कोई काम के नहीं. चलो ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लिख के लाओ. कल इसका अगला स्टेप हम पढ़ेंगे कॉल्ड इंटीग्रेशन. और याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएशन उसका